Hello everyone, my dear student friends, my dear learner friends. Today we are going to discuss a very interesting story from the book Hornbill, and this is the first chapter from your book Hornbill for class 11. So दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना हॉर्नबिल का जो पहला चैप्टर है, जो पहला लेसन है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। दोस्तों ये रिलेशनशिप ऐसा है, ये कहानी ऐसा है कि सबकी ज़िंदगी में अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर के साथ ज़बरदस्त एक रिलेशन होता है। कभी ये रिलेशन हम लोग महसूस करके उस दिन को लेके अफसोस करते हैं। तो ये जो स्टोरी है, द स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी, रियल स्टोरी। द स्टोरी इज about Kashwan Singh and his grandmother, the relationship between he and his grandmother, how it was once upon a time, okay, how it was in his childhood period, okay, जो उनका रिलेशन चाइल्डहुड में कैसे थे, स्ट्रॉन्ग रिलेशन था और बाद में ये कैसे खराब हुआ, कैसे कंडीशन बिगड़ते गया, कैसा क्या हाल हुआ, विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल्स. So my dear student friends, please listen carefully each and every words of mine, then you will get a complete idea about the story. So the chapter, The Portrait of a Lady, is the story of author and his grandmother. Already I have explained that the story is related to Kashwan Singh and his grandmother, and it's about their relationship. The grandmother was an old with a wrinkled face. The author had always seen her like this. For past 20 years, she appeared to be so old that she couldn't imagine her being young and pretty. Someone who had a husband. She was short, fat, and slightly bent. The author had seen his grandfather's portrait, an old man with a turban and a long white beard covering his chest. To the author, his grandmother didn't seem like a man who could have a wife and children, but someone who could have lots of grandchildren. His grandmother used to move around in the house spotless white, with her one hand resting on her waist and other hand counting the beads of her rosary. So in the very beginning, the writer said how the relationship was, how she was old. उनका जो ग्रैंड मदर था वो कैसे ओल्ड थी, उनका फेस में रिंकल थी, जैसे एज होने के बाद जो स्किन हो लूज हो जाता है तो फेस में रिंकल हो पड़ जाता है। तो अतर वो पहले से जन्म से ही देख रहा था, मतलब 20 ईयर्स से वो सेम कंडीशन में अपने ग्रैंड मदर को देखते आ रहा है। ठीक है, तो उनके लिए विश्वास करना बहुत कठिन था, मुश्किल था कि एक ज़माने में उनका भी ग्रैंड मदर एक खूबसूरत लेडी थी, एक खूबसूरत गर्ल जो बहुत प्रिटी थी। ओके, नाउडेज शी इज फैट एंड स्लाइटली बैंड। अभी पोएट क्या बोल रहा है हमें कि वो मोटी थी और बैंड थी, और उनका जो हाथ थी, एक हाथ कमर में ऐसा पकड़ के वो पैदल जाती रहती थी, वो वाइट स्पॉटलेस कपड़े पहनती थी, और ये इमेजिन नहीं कर सकते कि वो एक ज़माने में एक खूबसूरत लेडी थी। दोस्तों पोएट राइटर ये भी कहते कि उनका जो ग्रैंडफादर का जो पिक्चर है वो वॉल पे लगा हुआ था, तो वो वाइट मैन, पूरा वाइट बियर्ड, पूरा चेस्ट पे कवर्ड कर किया था, तो उसको भी लगा नहीं था कि वो भी, उनका भी बहुत सारा ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो जमाने भी यंग था। एंड अगेन पोएट राइटर ने क्या बोला कि वो जो उनका ग्रैंड मदर थी वो एक रिलीजियस वुमन, शी वॉज ए रिलीजियस पायस लेडी, शी यूज्ड टू काउंट द बीट्स ऑफ हर रोजारी, मतलब वो तस्बीह जैसे होता है ना, रोजारी बीट्स होता है, छोटा छोटा बीट्स, जिसमें हम मुस्लिम वाले तस्बीह बोलते हैं उसको, वो अल्लाह के नाम लेने के लिए यूज करते, सेम ऐसे भी वो करती थी। In the initial days, the author and his grandmother had a good relationship. She used to wake him up and get him ready for school. She used to pack the things required by him for the day and walk to school every day. She used to visit the temple that was attached to the school. She had a routine of reading scriptures. The author, along with her children, sat on the veranda singing alphabets and morning prayers. They both used to come back home together with the stray street dogs roaming around them as grandmother would carry a steel chapatis for them. So in the initial days, पहले जीवन में, पहले आरंभनी में, जो पहले पहले लाइफ में, चाइल्डहुड के समय में ऑथर और ग्रैंडमदर के साथ एक अच्छा रिलेशन था, एक मजबूत रिलेशन। शी यूज्ड टू वेक हिम अप, और वो मॉर्निंग उसको जगाते थे, खाना बना रेडी करते थे, फिर स्कूल के लिए सब सामान रेडी करके, बुक्स वगैरह बंद के रेडी करके बैग में डाल के वो उनके साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज वी नो शी वॉज वेरी रिलीजियस। तो स्कूल जाने के टाइम स्कूल के साथ में एक मंदिर था, वो मंदिर के में बैठ के उन लोग क्या करते थे, मॉर्निंग प्रेयर्स वगैरह करते थे।
ओके। एंड मॉर्निंग प्रेयर करती रहती थी वो, जब तक ग्रैंड ऑथर कशवंत सिंह स्कूल में थे तब तक। और आने के टाइम रास्ते के जो डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग्स होता है ना, उनको भी वो चपाती, वो ब्रेड्स, वो रोटी खिलाती थी। Soon the parents of the author who went to the city to settle and call them. As they reached the city, his relationship with grandmothers took turn. Though they shared the room, their bond grew apart. So क्या हुआ? As we know, author's parent, they went to city for their office purpose, for their job purpose. They settled in the city. तो उन लोग सिटी में सेटल हुआ था। तो सडनली क्या हुआ, एक बार खशवंत सिंह ने उनके ग्रैंड मदर को गांव से बुला लिया, गांव से सिटी तक बुला लिया। तब क्या हुआ, उनका रिलेशनशिप एक नया टर्न होने लगा। दे शेयर्ड द सेम रूम, देयर बॉन्ड grew apart. They started going to English medium school. She no longer accompanied him to the school, and there were no longer street dogs who roam around them while walking back home. She, however, used to ask him about the day and what he had learned. She didn't understand anything, as everything was another language which she couldn't understand. She didn't approve the new syllabus that she was studying because she thought that she didn't teach him God and scriptures. They saw less of each other. So when they settled, when they went to the city, जब उन लोग सिटी में चले गए, अपने ग्रैंड मादर कशवंत सिंह के जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने बुलाया, तो एक ही रूम में रहते थे। लेकिन हमारा कशवंत सिंह इंग्लिश मीडियम स्कूल में नाम लगाया और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने बास से जाना स्टार्ट किया। बट जो गांव में थे तो ग्रैंड मदर हाथ में हाथ पकड़ के, खाना पिला के, अपना बुक्स वगैरह बांध के स्कूल लेके जाती थी। लेकिन अभी वो स्कूल बस से हमारा कशवंत सिंह जाना स्टार्ट किया, इसीलिए ग्रैंड मदर अभी उनके साथ जा नहीं सकती, और उसी वजह से वो उसका रिलेशनशिप में एक खरोच आने लगा। और इंग्लिश मीडियम स्कूल के बावजूद होने के बावजूद ग्रैंड मदर को वो सब लैंग्वेज मालूम नहीं था। वो पूछती थी कि तुम्हारे स्कूल में क्या सिखाता है और क्या उन लोग सिखाते हैं। तो ग्रैंड मदर का वो आंसर था इंग्लिश से, तो इसीलिए उनको समझ में नहीं आता। और उन लोग स्कूल में म्यूजिक सिखाते थी, तो उसी वजह से ग्रैंड मदर को बहुत बुरा लगा था। बिकॉज वी नो शी वॉज वेरी रिलीजियस, pious lady. That is why she used to read the scriptures. She used to read the books from some religious books. So these things not happen there, and for that reason she became sad. As the days passed, he grew older and soon went to the university. He had his own room and that made their relationship sour. She stopped talking everyone and spent her whole day sitting her spinning wheel, reciting prayers and moving beads of her rosary with one hand. However, she loved feeding sparrows in the veranda at dawn. Breaking bread into the pieces and feeding to the birds was her daily routine. The birds would sit her legs, her heads, some even on the soldiers. तो दिन बीता गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे कशवंत सिंह की बड़ा होने लगा। तो अभी वो ग्रेजुएशन करके, ग्रेजुएट बन के यूनिवर्सिटी में नाम लगाया। तो उसी हिसाब से क्या हुआ, जब बच्चा यंग होता है, यंग होने के बाद वो माँ बाप के साथ नहीं सोते, तो सेम इसी हिसाब से खुशवंत सिंह को अपना एक अलग सा रूम दिया गया, और जिसकी वजह से उन लोग का रिलेशनशिप में थोड़ा मतलब खरोच आने लगा, एक डिस्टेंस होने लगा। जो राइटर का जो ग्रैंड मदर है वो बहुत दुखी हुआ, और उन्होंने किसी के साथ बात करना भी बंद कर दिया। सारा दिन वो बरामदा में बैठ के जो कपड़े का जो वेल में ऐसे घुमा घुमा के कपड़ा बनाते हैं ना, तो वो बनाने लगा। ओके, और सारा दिन वो मॉर्निंग प्रेयर्स वगैरह, रिसाइटिंग प्रेयर्स वगैरह, जो बीट्स का रोजारी है उसको लेके एक हाथ से वो काउंट करती रहती थी, प्रेयर्स करती रहती थी, और एक हाथ से वो स्पिनिंग व्हील्स का तो घुमा रही थी। Soon the author decided to go abroad for further studies. She came toward the railway station to leave him off. She was not sentimental, continuously recited her prayers, her mind lost in the prayers, and she kissed him on the forehead. After 5 years, as her return home, she was there, came to pick him at the station, was still the same as she had been for 5 years. She clasped him within her arms and didn't say a word. She still used to feed her sparrows. So what happened? Raito went to the abroad for further studies, for higher education, took admission in university. So what happened? She went to the railway station and she bid farewell to him. The same way she kissed him once in his forehead. Again, what happened?
When she went there, when he stayed there, when Kashwan Singh stayed there, वो जब वो वहाँ पे रहने लगा, 5 साल के बाद वो रिलेशनशिप में और भी ये मतलब डिस्टेंस होने लगा, और हम लोग बात भी कम करते रहे। तो क्या हुआ, 5 साल के बाद जो कशवंत सिंह फिर रिटर्न आया, फिर वही ग्रैंड मादर वहाँ पे रेलवे स्टेशन में गई थी कशवंत सिंह को मतलब लाने के लिए। तो तब सेम कंडीशन, जैसे वो जाने के टाइम उनको महसूस हुआ था कशवंत सिंह को कि शायद मैं लौट के नहीं आऊंगा, लौट के आके नहीं मिलूंगा, तो जिस हालत में थी ग्रैंड मादर, वो सेम हालत पे अभी भी थी। ओके, one day she didn't decide her prayers, but what happened now, they came to their house। तो यार स्टेशन से हम लोग घर आ गए। तो वो नॉर्मल जिंदगी, क्योंकि मैं समारी बोल रहा हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में कर अपने लाइव क्लास में करूंगा। One day she didn't decide her prayers, but instead collected the women for the neighborhood, got a drum and started singing. The next morning she was ill with mild fever. The doctor said that there was nothing to worry about. She was sure that her end was near. So what happened? जो ग्रैंड मदर एजेड थी, तो सडनली क्या हुआ, उनका तबीयत बुरा होने लगा, माइल्ड फीवर, जर मतलब बुखार होने लगा। तो डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने बोला कि दीज आर नथिंग, शी विल बी ओके, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ग्रैंड मदर को वो मतलब मौत का एहसास होने लगा, उनको लगा कि उनका मौत करीब है। She didn't want to waste her time talking to anyone she in the family anymore, but spent her last hours in reciting her prayers in the lying on the bed। तो मैंने बोल गया कि उस दिन क्या हुआ, उन्होंने सब अपने गांव के सब नेबरहुड को बुलाया, ड्राम लेके पूरा सिंगिंग करना स्टार्ट किया। सिंगिंग मीन्स इन रिलीजियस सिंगिंग वी कैन से, उन्होंने अपना धार्मिक जो गाना है वगैरह बजाने लगा। तो उनको मालूम थी कि उनका मौत करीब है। तो वो कभी अपने टाइम को बिताना नहीं चाहती थी बेकार में, इसीलिए शी स्टॉप टॉकिंग विद एनीवन, शी स्टार्टेड प्रेयर्स। वो प्रेयर करना स्टार्ट किया, वो बीट्स को गिनती करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सडनली अपने वो जो बीट्स का रोजारी है वो से गिनती करती रही। सडनली क्या हुआ, अपने हाथ से वो जो बीट्स ऑफ द रोजारी है वो स्टॉप हो गया, वो गिर गया। हर लिप्स स्टॉप्ड, उनका जो लिप्स है वो बंद हो गया। वो प्रेयर्स करने के टाइम ही उनका मौत हो गई, देहांत हो गई। As she died and her body lay on the bed, lifeless. As they prepared her funeral, they saw all the sparrows sitting on the veranda around her, mourning her death। तो शायद मैंने कहना भूल गया, जो वो सिटी में थी, तो सिटी में उनका जो हैप्पीएस्ट टाइम था, वो मतलब जो ग्रैंड मदर अपने कशवंत सिंह के साथ जा नहीं सकती थी, तो उनको बहुत बुरा लगती थी। उसी वजह से वो जो स्पैरो था, स्पैरोज मतलब वो बर्ड है, छोटा छोटा बर्ड होता है ना जो घर में रहते हैं, तो उस बर्ड को खाना खिलाती थी। तो ओके, इवनिंग का जो आधा घंटा टाइम उनके जीवन का सबसे मतलब महत्वपूर्ण, जब तो हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे गिना जाती थी, तो उनकी जो हैप्पी मोमेंट थी वो स्पारोज को जब खिलाती थी। तो स्पारोज के साथ उनके एक रिलेशनशिप थे। पहले जब गांव में थे तो कुत्ते के साथ जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको खिलाती थी, अभी स्ट्रीट डॉग्स नहीं है तो स्पारोज को खिलाती थी। और स्पारोज भी अपने शोल्डर पे, कांधों पे, ये सर पे बैठ के बहुत मजे मार के मतलब खाना खाते थे। तो वो मोमेंट बहुत जबरदस्त मोमेंट थे राइटर के ग्रैंड मदर के लिए। तो क्या हुआ, उस दिन जब उनका मौत हुआ, वो प्रेयर्स करते करते डेथ हो गया। तो उनका डेड बॉडी को मतलब सुलाया गया बरामदे पे, एक कपड़ा उनके बॉडी पे दे गया। फिर ग्रैंड मदर का बॉडी के सामने चारों ओर मतलब सराउंडिंग हजारों हजार स्पारोज मतलब गिरे हुए थे, सब आके बैठ के पूरा साइलेंट में, कोई एक भी आवाज, एक बार्ड्स को मालूम है कि अपने मास्टर को, they went there to show the respect toward their master because they loved them the way grandmother she used to feed them। That is why the birds they had a love, they had a deep love on their heart। That is why they went there, they sat there silently to show the respect toward their masters। okay, अपने मालिक को प्यार दिखाने के लिए, इज्जत दिखाने के लिए उन लोगों ने पूरा बॉडी के साथ करीब गिरे हुए थे, लेकिन एक भी आवाज नहीं की थी। तो एक टाइम क्या हुआ, ग्रैंड मदर का अंतिम जो संस्कार, फ्यूनरल का टाइम हो गया, तो बॉडी को उठा के लेके गया। तो बॉडी उठाने के टाइम क्या हुआ, बर्ड्स सब उड़ के चला गया एकदम साइलेंटली, दे फ्ली अवे साइलेंटली। तो
पूरा बिना आवाज़ के साथ उन्होंने बर्ड्स उड़ के चली गई। सो दोस्तों यही है ये जो स्टोरी एज ए होल मैंने डिस्कस किया, वही थिंग्स द सेम थिंग विल डिस्कस इन द चैप्टर, बट मे बी विल गेट सम एक्स्ट्रा लाइन्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा things. I will take your class on live. So in the live class we'll explain everything. Thank you very much everyone for paying heed to my words. Have a wonderful day. Thank you.